What is the disproportionation reaction, Arav? आरव और आर्यन. Okay, Aryan से नहीं पूछ रही मैं, ऐश्वर्या. What is the disproportionation reaction? Ma'am, the same element is oxidized as well as reduced. Okay, So, the same element. ma'am, they're always redox. They are always redox. Very good. Same element is oxidized as well as reduced. Okay. So these type of reactions are called as disproportionation reaction. बहुत सारे बच्चे हैं जो लेट ज्वाइन करते हैं. Okay, 1 minute. Just revise the concept of oxidation number. I am simply sending a message in the group for these students to join. Okay. Now, before I am taking the more type of reaction, या पहले सारे कर ही लेते हैं. Then I will be telling you the further. I told you that I will be taking oxidation number again in detail. Okay. So the next type of reactions that we are going to do are the what we were doing was the type of types of redox reactions. We have done combination, decomposition, and the other is disproportionation. Next type of redox reactions are displacement reactions. Displacement reactions. Now, displacement reactions means a more reactive element displaces a less reactive element. Please switch on your camera. All of you switch on your cameras. Ma'am, your voice is cracking for some reason. Voice crack हो रही है मेरी अभी भी? No, ma'am. नहीं, अब ठीक है ma'am. Okay. Displacement reactions means a more. क्या हुआ? मैम वीडियो शेयर कर दो. अरे वीडियो. अच्छा रिकॉर्डिंग कर लूं? Should I do start the record? मैम स्पॉटलाइट कर दो अपने आप को. Displacements are less reactive element. Now, this can be of two types. One of them is a metal displacement. This you have done in your earlier classes. Metal displacement. Do you remember the reactivity series of metals? Yes, ma'am. What is it? P. PSC metal. This is a way of remembering the reactivity series. Then hydrogen, copper, silver, and gold. What is the meaning of P? Potassium. Video is not visible. Your video is off. क्या कर दिया मैंने बेटा दोबारा से? I don't know what's the problem coming. Just wait. Meaning of a metal displacement reaction.
A more reactive material displaces a less reactive. What is the significance of this term, PSC Magentile? Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum. Sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, nickel. What is the meaning of T? Tin. And H means hydrogen, copper, silver, and gold. So it means which is the most reactive out of these? Potassium. Potassium. So now the metal displacement reaction means if I am taking this copper sulfate and I am reacting it with zinc, what happens? Okay, which is more reactive out of copper and zinc? Zinc Zinc is more sulfate. reactive. What will be the product? We know that zinc is more reactive. Zinc is on the top and copper is on the bottom. Zinc is more Zinc reactive. sulfate plus copper. Zinc sulfate plus copper. Now, is this reaction a redox reaction? Is this reaction a redox reaction? Yes, ma'am. Oxidation number of copper here +2. +2. जिंक का होगा 0. यहाँ पे होगा सल्फेट का होता है -2. SO4 2 माइनस. मैं अलग अलग नहीं निकाल रही. सल्फेट इज अ आयन, इसका एज इट इज याद करो SO4 2 माइनस. ठीक है, तो जिंक का हो गया +2. तो जिंक की क्या हुई, विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड? Zinc increase in oxidation number and copper is getting reduced. Decrease in oxidation number. So it means that this type of reaction is a redox reaction. So metal displacement means a more reactive element displaces a less reactive element. Now another example for this. If I am taking is this one, what will be the product form? Ma'am, Al2O3 Plus chromium. Okay. Now this is again a displacement reaction here. Chromium का होगा +3, oxygen का -2, aluminium का 0. Reduction और aluminium की oxidation. So these type of reactions in which a more reactive element displaces a less reactive element. Now the second type is non-metal displacement. What is the meaning of non-metal displacement reaction? What is the meaning of non-metal displacement reactions? Ma'am, when more electronegative element displaces less electronegative element. The more electronegative non-metal element, non-metal are electronegative element displaces less electronegative element. Okay, Akansha, out of various halogens, if I am taking fluorine, bromine and iodine, which is more reactive, which is more electronegative? Yes? Fluorine. Fluorine. Okay. Okay. Now, if I am taking is fluorine and oxygen, which is more electronegative? Shivansh, Shashwat? Ma'am, chlorine. Fluorine. Fluorine. Okay. So it means that a more electronegative element displaces a less electronegative element. So all these type of reactions are called as non-metal displacement. What about hydrogen? Is hydrogen a metal or a non-metal? Ma'am, non-metal. Non-metal. Hydrogen is a non-metal. Okay. Now, if I am taking this reaction
NaBr plus chlorine. What? Chlorine is more electronegative. So more electronegative element displaces the less electronegative. Is it okay? So this is an example. A more electronegative element is displacing a less electronegative. Now, is this a redox reaction? Sanket? Sanket is there? Yes, ma'am. The redox reaction. Ma'am, can you please repeat? Is this reaction a redox reaction? Follow? Yes, ma'am. Why it is a redox reaction? Can you justify? Because, ma'am, transfer of electrons are taking place. Which is getting oxidized and which is getting reduced? Which is getting Ma'am, oxidized? इसकी ma'am, oxidation और reduction होगी. chlorine is oxidized. Okay. Chlorine is oxidized. यहाँ पर सोडियम का है +1, ब्रोमीन का कितना -1? Yes or no? Yes, ma'am. क्लोरीन का कितना है? मैम reduce होगा. मैम chlorine zero है. नंबर 0, इसका +1, इसका -1, इसका 0. इसकी क्या हुई है? The one which I am showing by the arrow. Oxidation or reduction? Reduction. Oxidation. Oxidation. और इसकी क्या होता है? रिडक्शन. ठीक है ना, क्लोरीन की हुई है रिडक्शन. इट मींस यहाँ पर आपकी NaBr की हुई है ऑक्सीडेशन. हम हमेशा रिएक्टेंट्स की टर्म से बताते हैं, और क्लोरीन की हुई है रिडक्शन. तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Next, Devansh. Devansh is there? Yes, ma'am. Is this a redox reaction? Ma'am, please repeat. You were a bit talking. Reaction or redox reaction when sodium reacts with water to form NaOH and hydrogen gas. Is this reaction or redox reaction? Yes, ma'am. Can you oxidize? Yes, ma'am. Get oxidized. Ma'am, sodium is being oxidized and hydrogen is being reduced. अगर नए क्वेश्चन में स्पीशीज पूछा जाता है रिएक्टेंट्स की टर्म्स में, तो ऑक्सीडेशन हुई है सोडियम की और रिडक्शन किसकी हुई है? वाटर और हाइड्रोजन इन वाटर. वाटर मेंशन होना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, Ayush. Is this reaction a redox reaction? Ayush? Ayush is absent. Okay. Next, Pragya. Yes, ma'am. Is this reaction a redox reaction? Yes, ma'am. Okay, which is getting oxidized? Ma'am, oxygen. ऑक्सीजन में पूरी स्पीशीज बोलो. ऑक्सीजन या वाटर? Ma'am, oxygen in water. वाटर. ठीक है. ऑक्सीडेशन इसकी हो गई आपकी, और रिडक्शन? Ma'am, fluorine. Chlorine. ठीक है. वेरी. Okay. Now, can anyone tell me, will this reaction take place? Yes or no? Ma'am, this is not a redox reaction. कौन सा वाला? ये वाला? Yes, ma'am. यही. क्यों? This will not take place. Cl2 plus 2 ion. अच्छा, चलो मैं इस तरह से लिखती हूँ. Now tell me. This is a complete reaction. Is this a redox reaction? Yes, ma'am. What No, is the ma'am. chlorine here? What is the oxidation number? 0. 0. I bring out to -1, -1, 0.
अच्छा ये ना इस तरह के जब मैं इस तरह से लिखती हूँ ना जिनको बोलते हैं आयनिक इक्वेशंस. Actual equation I can take it like this: chlorine plus 2 sodium iodide gives 2 NaCl plus I2. ठीक है. यहाँ पर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हाउ आई एम राइटिंग दिस फॉर्म. आप देख रहे हो कि सोडियम का देयर इज नो चेंज, +1 से +1 रहा है. तो इफ आई एम नॉट राइटिंग इन सोडियम, आई एम सिंपली राइटिंग 2 chlorine plus 2I minus gives 2 chloride ions plus I2. So these type of equations, whenever I am not writing the one which is not changing, sodium को कोई भी change नहीं हुआ. So these type of equations are called as ionic equations. So you can easily identify whether they are doing oxidation or not. Is it okay? So now I think you can, all of you can easily recognize what is a redox reaction. Yes or no? Now I am again proceeding with the concept of oxidation number. Have you revised the concept of oxidation number? Sahil? Yes, ma'am. Yes. I am coming to the oxidation number. I will be taking some other examples. Okay. Okay, let me use the book, one of the book. Just go through the concept of oxidation number again meanwhile. Write down the question. Find the oxidation number of underlined atoms. I am taking question number first, NCERT back exercise. Find oxidation number of underlying atoms. Okay, I am starting from the back. First one, Vanshika. Second, Vani. Siddhant Jain is absent hoga. Siddhant Sharma, third one. Fourth one, Shreya. Okay. I am taking parts in between. सारे ले लेंगे. Yes, first one. जिसका निकालना होता है कि लेट मी टेक वन एग्जांपल. जिसका निकालना होता है उसका मैं x ले लेती हूँ. सोडियम को आ गया +1 +2. हाइड्रोजन का जनरली कितना होता है? +1. Whenever hydrogen is combining with non-metals, sodium metal है लेकिन phosphorus and oxygen are non-metals. तो whenever hydrogen के साथ कोई non-metal present होगा, hydrogen का होगा +1 plus phosphorus का हो गया x plus 4, oxygen का होता है -2 is equal to 0. Yes. Vanshika, what is the oxidation number of phosphorus? Vanshika, say yes, ma'am. Yes, ma'am. Find the oxidation number of. दिख नहीं रहा है. दिख नहीं रहा है. तो कैमरा नहीं है. कैमरा तो हम ब्लर दिख रहा है मतलब. बेटा बाकियों को भी ब्लर दिख रहा है. नो मैम. नहीं मैम. Just join again. Ma'am, 5. 5. Okay, let's see. Vani, up next निकालो. +1 +2 +x -8 is equal to 0. Yes. X is equal to +5. Yes, Vani. NaHSO4. Yes. What is the oxidation number of sulfur? Ma'am, 8. कितना? 8. 8. How come? सोडियम का +1, हाइड्रोजन का मैम कितना? 6 होगा. Ma'am, 6.
ठीक है, हाइड्रोजन का +1 प्लस सल्फर का x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0. You get 2 minus 8 means x minus 6 is equal to 0. X is equal to +6. Next, Siddhant Sharma and fourth Parshia. जिसका हो गया देख, tell me the answer. मैम फोर्थ पार्ट. इसका कितना होगा? किसका बोला, बोरॉन का या मैंगनीज का? मैम मैं फोर्थ पार्ट का आंसर बता रही हूँ. हाँ बोलो. मैम 1 plus x minus 4 is equal to 0. +1 plus x plus 4 या -4? हाइड्रोजन का कितना लोगे? minus 4. माइनस क्यों लोगे? हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद बोरॉन. देखो NaBH4 कैसे ब्रेक डाउन होते हैं, Na प्लस एंड BH4 माइनस, Na प्लस HSO4 माइनस. तो बेसिकली हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन है, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ? मैम +4 होगा. हाँ, बोरॉन इज अ नॉन मेटल. ठीक है, इज इक्वल टू 0. व्हाट इज x? मैम x is equal to +3. मैंने गड़बड़ कर दी क्या? मैम मेरे ख्याल से तो -4 ही होगा. 1 plus x minus 4. बोरॉन का मेंशन कैसे होता है? हाइड्रोजन के में मेरे को -1 लेना पड़ेगा. बोरॉन का +3 होता है. हम अच्छा, हाइड्रोजन के हमने नेगेटिव क्यों ली? इस केस में एक्चुअली में अगर मैं बोरॉन और हाइड्रोजन को देखूंगी ना, इज देयर एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोरॉन? इज बोरॉन अ मेटल और अ नॉन मेटल और अ मेटलॉइड? मेटलॉइड. और मेटलॉइड्स का मैंने आपको क्या बोला था, क्या होता है? पॉजिटिव. कल याद है पॉइंट आपको बताया था, मेटलॉइड जनरली बिहेव लाइक मेटल. का मेरे को पॉजिटिव लेना पड़ेगा. यस. ठीक है, तो अगर पड़ेगा तो हाइड्रोजन का मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा इन दिस पर्टिकुलर केस. ठीक है, तो इट इज अ यूनिक केस. तो इसमें मेरे को बोरॉन आई एम कंसीडरिंग एज अ मेटलॉइड. सो मेटलॉइड का पॉजिटिव में आएगा, तो दैट्स व्हाई आई हैव टू टेक हाइड्रोजन एज नेगेटिव. ओके, व्हाट अबाउट K2MnO4? हम +6. +6. ओके, जो भी आपके थोड़े से अलग से एग्जांपल से डाटा आई एम टेकिंग, क्योंकि कईयों के आपको स्ट्रक्चर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है. नेक्स्ट एग्जांपल इज H2S2O7. Yes, what is the oxidation number of sulfur here? Six. हम +6. +6. 2 into hydrogen का +1 plus 2x sulfur का x plus 7 into -2 is equal to 0. So 2x minus 14 यानी +12 minus 12 is equal to 0. So x is equal to +6. Okay. Now I am taking another example, question number 8.2, Ki3. What is the oxidation of iodine here? -1/3. Okay, आप बोलोगे +1 +3 आयोडीन का x ले लिया इज इक्वल टू 0. तो 3x इज इक्वल टू -1. व्हाट इज x? -1/3. यही होगा. एक आयोडीन की -1 होगी, बाकी 0 होगी.
Okay. Acha, someone was asking me yesterday what is the concept of fractional oxidation number. Now, in this means that the oxidation number is minus 1/3, but oxidation number cannot be fractional. So, how to explain this? So, if the oxidation number is coming out to be fractional, it means that there is something unique regarding the structure. ठीक है अब ये आपके अलग यस दोबारा बोलो Ma'am, this is potassium ozonide, no? नॉट ओजोनॉइड I3 है बेटा okay just wait now in this case what is happening is that in this is a particular type of case. Now Ki3 basically consists of Ki plus I2. ठीक है Ki plus I2 gives Ki3 और Ki3 के बॉन्डिंग कैसे होते हैं दोनों आयोडीन के बीच में आपको मालूम है सिंगल बॉन्ड होता है yes or no? It is just halogen. How many electrons are present in the valence shell of halogens? How many? Seven. Iodine is having 7 electrons. ठीक है एक इलेक्ट्रॉन दोनों का हो गया शेयर तो इट मींस इज द आयोडीन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया नहीं हो गया each of the iodine two iodine मैंने लिया they are having 7 electrons and one they are sharing so structure of I2 is complete but now what is the meaning of Ki3 it means Ki and this ये जो iodine है it is forming a coordinate covalent bond one of the iodine is forming a coordinate covalent bond so I am writing the structure like this ये इस तरह से भी दिखा सकते हो या आप ऐसे दिखा दो K plus and I minus and this iodine is forming a coordinate covalent bond ठीक है so this is the structure of Ki3 तो मैंने यही बोला है कि किसी केसेस में अगर फ्रैक्शनल आ रहा है या कुछ का अलग से ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है so we need to know the structure so Ki3 is nothing but Ki plus I2 Ki3 is nothing plus Ki plus I2 what is the oxidation number of potassium plus 1 आयोडीन को आ गया -1 अच्छा ये I2 तो मॉलिक्यूल है मॉलिक्यूल में क्या होता है जैसे एलिमेंट है ना I2 इज अ एलिमेंट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है 0 जैसे कोई भी एलिमेंट जैसे आयोडीन है अगर ये दोनों सेम आयोडीन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं ये सेंटर है तो इसका क्या होगा 0 if an element is forming the bonds with the same element its oxidation number is 0 अगर उसके हर साइड पर सेम एलिमेंट है तो ये जो आयोडीन है Ki3 मींस Ki और साथ में है आयोडीन ठीक है अब K प्लस I माइनस और बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है नाउ इस आयोडीन का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया व्हाई इट इज 0 बिकॉज दिस आयोडीन इज फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद द यहाँ पर भी आयोडीन है यहाँ पर भी आयोडीन है सो इफ अ एलिमेंट इज जस्ट राइट डाउन इफ अ एलिमेंट इज फॉर्म द बॉन्ड्स विद द सेम एलिमेंट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज 0 तो यहाँ पर पोटेशियम का हो गया +1 आयोडीन का हो गया -1 अच्छा इसका 0 है तो इसका भी क्या होगा इस आयोडीन के साथ भी तो आयोडीन ही प्रेजेंट है ना और तो कोई एलिमेंट नहीं है तो इसका भी क्या होगा 0 तो इट मींस कि टोटल 3 आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 ठीक है ना 3 आयोडीन है तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 0 + 0 + -1 तो 0 + 0 + -1 तो दैट इज 3 आयोडीन का 0 है तो एक आयोडीन का एक्चुअली में नंबर कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर इज -1/3 so in these particular examples you need the structures and do only the cases given in NCERT or whatever is being told in the class NCERT plus class okay now another example is अभी सारे आपके यूनिक वाले आएंगे यहाँ पर there is something exceptional
So this is basically NCERT question number 8.2. Now, if I am taking the second part, H2S4O6. What is the oxidation number of sulfur coming out according to the rules? Hydrogen का +1, it is combining with non-metals plus sulfur का X +6, oxygen का हो गया -2 is equal to 0. ठीक है, so you get 2 plus 4x minus 12 is equal to 0, so 4x is equal to 10, x is equal to 5/2. Again, it is fractional. Oxidation number cannot be fractional, we all know. So if we are getting a fractional oxidation number, we need to draw the structure. Now, while drawing the structures, just remember कि hydrogen तो हमेशा corner पर होता है. Out of oxygen and sulfur, which is more electronegative? Sulfur. Sulfur, huh? Oxygen. Oxygen is more electronegative. तो hydrogen तो आगे corner पर और सेंटर में कौन सा एलिमेंट होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. आपको ये मैंने पॉइंट बताया था. जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर किया था सल्फ्यूरिक एसिड का, सेंटर में सल्फर था, आसपास ऑक्सीजन थे. तो यहाँ पर भी सेंटर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा. व्हिच इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट? सल्फर. हाउ मेनी सल्फर आर देयर? 4. 4. तो सेंटर में होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी सल्फर. देयर आर 4 सल्फर. सो आई एम राइटिंग द सल्फर लाइक दिस. Okay, now how many oxygen in total? 6. 6. So how the 6 oxygen will be there? एक ऑक्सीजन होगी हाइड्रोजन के साथ कंबाइन. ठीक है, हमेशा जब भी एसिड होते हैं ना H2SO4 वह एसिड्स होते हैं. एसिड्स मीन दे कंटेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन. अब 4 ऑक्सीजन बची. Now they are in this way. This is the structure. See, now you need to remember the certain structures. So this is the structure of S2S4O6. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर I told you one point. If an atom is combined with similar atoms, then its oxidation number will be 0. Okay, Aman, are you there? Aman, Anshika, should I need to see the attendance again? Okay, 1 minute. I am taking the attendance again. Yes, Aman and Anshika, they are showing you as present. Yes. Okay, I am marking you absent now. Galaxy. Sahil. No. Hanji, what is the oxidation number of these sulfur atoms which are combined to? ये sulfur इसके 0. इस sulfur का 0, इसका आगे 0. Is it okay? Now, what about the oxidation of this hydrogen +1? Oxygen -2. Hydrogen +1. Oxygen -2. Okay. What is the oxidation number of these two oxygen? -2. -2. What should be the oxidation number of this sulfur? +6. I'm +6. +6. How it is +6? I'm 5. +5. ये देखो, इसके यहाँ पर है 3 ऑक्सीजन मीन्स -6 और +1 मीन्स +5. ठीक है, इसका भी +5 आएगा, इसका भी +5 आएगा. एंड इफ यू आर फाइंडिंग अ प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग लाइक दिस, आप इस तरह से लिख लो. अब आपको ये मालूम है कि दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन का हो गया +2 या +1 × 2 प्लस 4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन का -2 प्लस.
अब 2 सल्फर का कितना है 0, 2 सल्फर का तो 0 है ना, हम निकाल चुके हैं। हाइड्रोजन का +1, 2 हाइड्रोजन है तो +2 हो गया। ऑक्सीजन 4 है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 ऑक्सीजन है, टोटल 6 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन का -2 प्लस 2 सल्फर का क्या है मेरा 0, प्लस 2 सल्फर का मुझे x ले लिया इज इक्वल टू 0। इज द पॉइंट क्लियर? इज इट ओके? टोटल 4 सल्फर है, 2 सल्फर का तो है 0 और 2 सल्फर का मैंने ले लिया 2x, तो इट मींस 2 - 12 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5/2। Ma'am, in two compounds where element, just repeats itself but do not have, we don't write them as one. Like if I say COOH, if we take as an example, then the O comes 2 times but not O2. Then in this case, what we have to do? वो कर रही हूँ, पहले ये केस समझ आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, पहले ये वाले एक्सेप्ट बता रही हूँ, इसमें एक बार दोबारा बता रही हूँ, एक तो क्या मेरा एवरेज नंबर, एवरेज हो गया 5/2, लेकिन इन 5/2 में से मेरे को ये मालूम है कि जो 2 सल्फर एटम्स है इनका जो है 0 और बाकी 2 सल्फर एटम का, अगर मेरे को इस वाले सल्फर एटम का निकालना है तो इसके आसपास मैं देखूंगी -2 -2 -2 -6 और +1, -6 +1 मीन्स -5, तो सल्फर का हो गया +5। तो ये जो सल्फर है जिसको मैंने ब्लू से दिखाया है इसका है +5, इस वाले सल्फर का भी होगा +5 एंड टोटल इज इक्वल टू 0। इज इट ओके मैम? हाँ जी मैम अभी जो आपने नीचे x इज इक्वल टू 5/2 लिखा, मैम वो सिर्फ 5 नहीं होगा? सल्फाइड सिर्फ 5? हाँ 5 आएगा, सॉरी मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी थी क्या? यस मैम। 1 -2 + 6 ऑक्सीजन है इनटू -2 प्लस 2 ऑक्सीजन 2 का 0 प्लस 2 इनटू -2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये क्या था मैंने 2 - 12 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, हाँ 5 आएगा सब। और हमने कैलकुलेट भी तो यही किया, बाकी दोनों सल्फर का कितना है +5, तो दिस इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग नाउ टू शो दैट इट इज +5, क्योंकि हमें मालूम है कि आउट ऑफ 4 सल्फर 2 सल्फर का कितना था 0, तो एवरेज आपका इसका 5/2 आएगा, बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स वी नो दैट 2 of the sulfur is having the 0 and 2 of the sulfur is having oxidation number of -2. Okay, now I am taking more examples. मैम ये फॉर्मूलाज हम बनाते कैसे हैं खुद से? बेटा विद प्रैक्टिस, जो आपके एक्सेप्शनल केसेस हैं उनको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विद प्रैक्टिस धीरे धीरे आपको अपने आप आने लग जाएगा। नेक्स्ट इज Fe3O4। अब यहाँ पर आयरन का अगर मैं निकालूंगी 3x + 4 × -2 इज इक्वल टू 0, इट मींस 3x इज इक्वल टू -8, x is equal to +4/3. Not possible. All of you know it is not possible because in fractions. So what we need the structure, and actually Fe3O4 is nothing but Fe3O4 is a mixture of FeO and Fe2O3. Fe3O4 is called as iron second charred oxide. थोड़ा सा आपका 10th में था, iron second charred oxide. It means it is a mixture of iron second oxide and iron third oxide. Oxygen का -2, oxygen का -2. What is the oxidation number of iron here? +2. और इस iron को होगा +3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है? So it means yes or no? एक आयरन का होगा +2, वन ऑफ द आयरन इज हैविंग अ +2 और 2 आयरन का होगा +3,
टोटल अगर आप निकालोगे तो इट विल बी 3 आयरन का हो गया +2 +3 into +6 तो +8। तो ये तो मैंने ऐसे निकाला, बट एक्चुअली व्हाट वी नो इज दैट इसमें दो आयरन डिफरेंट है। वन ऑफ देम इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड अदर इज इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। आज इनको करोगे एक बार घर पे तभी याद होगा। इट नीड्स प्रैक्टिस। मैम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ये बेटा मिक्स्ड ऑक्साइड है। मिक्स्ड मींस FeO एंड Fe2O3 आयनिक कंपाउंड्स है, इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग नहीं है। स्ट्रक्चर तो मैं कोवलेंट की बनाऊंगी ना। इसका क्या मतलब है, इसमें एक Fe2+ और एक O2- प्रेजेंट है और दो Fe3+ आयंस प्रेजेंट है और Fe2O3 में 3 O2-। दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। स्ट्रक्चर हम हमेशा कोवलेंट कंपाउंड के बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते। Ionic compounds means simply electrostatic forces of attraction between the positive and negative ions. तो इसमें आपको डिफरेंट केसेस को आपको डिफरेंट वे में करना पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि केवल जो पहले एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है वो करना, बाद में और एग्जांपल्स करोगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके एक्सेप्शनल केसेस आ सकते हैं। आपके हो सकते हैं कोचिंग में बहुत सारे कराए, बट आई एम हियर लिमिटिंग इट टू एनसीईआरटी। CH3COH ओके। फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, कार्बन, दो कार्बन है, दोनों का X ले लिया, +3 4 हाइड्रोजन का +1 +2 इंटू ऑक्सीजन का हो गया -2 इज इक्वल टू 0। यस और नो? कार्बन का हो गया X +4 हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद अ नॉन मेटल, हर हाइड्रोजन का +1, दो ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 0, तो मींस x इज इक्वल टू 0। तो इसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गया, बट इट्स नॉट पॉसिबल। We can see कि carbon is combining with other elements, so it is not possible that a carbon is having an oxidation number of 0. Oxidation number 0 कब होता है? When it is combined with similar type of atoms. जैसे आपको इसमें बताया था, अगर ये सल्फर है, जब उसके दोनों साइड सेम सल्फर ही प्रेजेंट हो, only then it can be 0. But we can see that इस कार्बन का तो 0 नहीं हो सकता ना। कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कैन नॉट बी 0। इट इज नॉट पॉसिबल। So what we need to find, मतलब it means total 0 है, but what is the individual number of each carbon? Can you find it? चलो पहले इस कार्बन का करो, CH3COH वाले का। Yes. Mom, +3 and -3. 0 कैसे हो गया? हाँ जी, ओके, लेट्स कैलकुलेट। इसका होगा ऑक्सीजन का -2, पहले मैं इससे स्टार्ट कर रही हूँ। ऑक्सीजन का हो गया -2, इस ऑक्सीजन का -2, इसका +1, इसका +1। व्हाट अबाउट दिस कार्बन? अच्छा, यहाँ पर इसका मैं कंसीडर ही नहीं करूंगी बिकॉज इट इज कंबाइंड विद अ सिमिलर कार्बन। +2 +2। मैम ये आपने नीचे वाला एक कार्बन के नीचे सेकंड में एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा नहीं है? हाँ जी, बोलो। हम +3। +3
+3 आ रहा है। ओके, एक मिनट रुक जाके लिखना मत। अच्छा, इस कार्बन का क्या आएगा? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आउट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन? -3. क्या चीज? किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, किसके ऊपर नेगेटिव आएगा? Carbon will be negative. Carbon will be negative and hydrogen will be positive. हाइड्रोजन का आ गया +1, इसका आ गया +1, इसका आ गया +1, तो कार्बन का आपका हो गया -3। इज इट पॉसिबल कि कार्बन के +3 और -3 है? Yes. No, ma'am, because it will add up to 0. How will we do it? How will we do it? हाइड्रोजन का चेंज करेंगे क्या? हम क्या कर रहे हैं? If I am taking is CH3COH, ठीक है, तो हम इसको ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि CH3COH में बॉन्ड होता है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज। जस्ट सी अगेन, ये सारा भूल जाओ। CH3COH, ठीक है, इन दोनों में से COH के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. इस केस में व्हाट वी आर टेकिंग कि इस कार्बन के साथ जब ये कार्बन प्रेजेंट है, पहले मैं इसको, ओके लेट मी गिव इट अ नंबर, इसको मैंने नंबर दे दिया 1, इसको मैंने दे दिया कार्बन एटम नंबर 2। अगर मेरे को कार्बन एटम नंबर 1 का निकालना है, ठीक है, ऑफ कार्बन एटम नंबर 1, तो व्हाट वी नो इज दैट इट इज कंबाइंड टू विद 3 हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन का हो गया 3 into +1 प्लस x प्लस, अब इस ग्रुप को मैंने बोला कि इट इज लाइक दिस, CH3 प्लस COOH के ऊपर इट इज लाइक दिस, तो इस पूरे ग्रुप का मैं लेके चलूंगी -1, तो you get 3 plus x minus 1 that is equal to +2. That's what I am saying कि आपके सारे यूनिक केसेस हैं, they are not the normal cases. जहां पर भी कार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, एंड COH। अब हमें मालूम है कि COH ओवरऑल एसिडिक ग्रुप है, CH3 plus COH minus, it breaks down like this. इसके लिए आपको एडिशनल नॉलेज चाहिए, इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। COH के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। We are saying that it breaks down to form CH3 plus COH minus. तो ओवरऑल COH का मैंने चार्ज ले लिया -1, तो तीनों हाइड्रोजन का हो गया +1 into 3 कार्बन का X, और इस पूरे ग्रुप का मैंने ले लिया -1। अब अगर मैं सेकेंड कार्बन एटम का निकालूंगी, जिसको मैंने ये वाला लिया C2, अब इसके साथ आपके क्या 2 ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन का हो गया -2 प्लस, ठीक है ना, 2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन का हो गया +1, ये हो गया हाइड्रोजन का प्लस। अब इसके साथ कौन सा प्रेजेंट था? प्लस कार्बन का मैंने ले लिया X, लेकिन इसके एक साइड कौन सा चार्ज है? +1, बिकॉज दैट चार्ज इज ऑफ CH3 प्लस, ये हो गया -4 प्लस 1 प्लस X प्लस 1, कितना आएगा? 2. ये इसको ऐसे ले लो, जो गया -2, और इसका आ गया इज इक्वल टू 0 मीन्स +2। तो एक कार्बन का है +2, एक का है -2। वी कांट से कि कार्बन का, क्योंकि जनरली -4 नहीं होता। I know you may be finding it difficult, obviously, तभी मैंने आपको ये कल नहीं कराया था। तो ये 3-4 एग्जाम्पल जो आपके NCERT के हैं, प्लीज डू देम as exceptional cases. Any other example in NCERT? Then I will explain. Just let me see your NCERT books. Just open your NCERT books. If there is any more example, then I will take. बाकी शायद आपके सारे easy थे,
केवल यही क्वेश्चन था 8.2 दैट वाज अ टिपिकल एक्सेप्शनल बेस्ड क्वेश्चन। तो गो थ्रू द टॉपिक अगेन। अच्छा एक और दिया हुआ है आपको, बी आर, दो एग्जांपल्स और दिए हुए हैं। दे आर ऑन पेज नंबर दिस द पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी करा देती हूँ आपको। Two more examples unsolved, they are given, sorry, solved examples inside the book. It is given in a green box. Example is C3O2. Next example is C3O2. It is called as carbon suboxide. C3O2 सेंटर में कौन सा एलिमेंट होगा? कार्बन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो व्हाट अबाउट द कार्बन? कार्बन नेक्स्ट 4 बॉन्ड्स। तो कार्बन यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिखाऊंगी मैं, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड दिखाऊंगी। इज इट कार्बन एटम फॉर्मिंग द 4 बॉन्ड्स? यस और नो? ओके, व्हाट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस ऑक्सीजन? कॉर्नर ऑक्सीजन के बोलो। ऑक्सीजन जनरली -2। -2। अच्छा इस कार्बन का क्या होगा? इट इज, उसके दोनों साइड सेम कार्बन +4। इस कार्बन का तो 0 होगा। और कम 0 0। हाँ मैम 0। किसी एटम के दोनों साइड सेम एटम्स होते हैं और कोई डिफरेंट एटम होते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर हाइड्रोजन भी था, कार्बन भी था, लेकिन इस कार्बन के दोनों साइड क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो इसका तो हो गया 0। अब अगर इसका -2 है तो इसका कितना हो गया? +2। इसका -2 है तो इसका हो गया प्लस। ठीक है, इस कार्बन का तो 0, इसका तो -2, तो इसका ऑब्वियसली क्या होगा? +2। या ऑक्सीजन का -2 इधर होगा +2। ओके, नेक्स्ट केस Br3O8। लास्ट एग्जांपल 3O8 ब्रोमो। अच्छा ब्रोमीन और ऑक्सीजन में से क्या होगा कॉर्नर पर? ऑक्सीजन। ब्रोमीन 3 ब्रोमीन सेंटर में। अच्छा ब्रोमीन के पास कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं? ब्रोमीन इज अ हैलोजन। अब आपके पास टोटल 8 ब्रोमीन है, 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो स्ट्रक्चर आपका इस तरह से होता है। मैंने पहले कहा कि एक्सेप्शनल केसेस है, यू हैव टू डू द स्ट्रक्चर्स। आपको रीड करने पड़ेंगे और 2-3 बार करने पड़ेंगे, तब आपको याद होंगे। दिस इज द स्ट्रक्चर। नाउ कैन यू कैलकुलेट? सेंटर से स्टार्ट करते हैं। What about the oxidation number of this bromine? ऑक्सीजन का -2, इधर भी ऑक्सीजन का -2, तो ब्रोमीन का क्या हो गया? प्लस। ठीक है, यहाँ पर तो इसके साइड ब्रोमीन ही है, इसका हो गया -2 -2 -2, इसका हो गया +6, इसका हो गया +6। I know the topic is little bit confusing, but I can't help it. बस ये बोल सकती हूँ कि जितने एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के कराए हैं, डू ओनली दोस। क्वेश्चन नंबर 8.2 और ये टॉपिक था, ये कराया। बाकी कोई भी आपको एक्सेप्शनल केसेस नहीं करने। आपके जेईई मेंस वगैरह कोचिंग सेंटर में करा सकते हैं, बट वी वोंट गिव यू एनी अदर एक्सेप्शनल केस। मैम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं हुआ ना अभी इस पे? मैम डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन नहीं हुआ ना अभी? डिस्प्रोपोर्शनेशन तो बेटा कल कराया था मैंने। आई गेस मैंने फर्स्ट वाली क्लास अटेंड नहीं करी थी, हम ऑक्सीड इसकी मैम रिडॉक्स रिएक्शन की, तो हमें इसलिए नहीं पता मेरे को। कल जो कराई थी, कल वाली अटेंड नहीं की थी मैम? कल वाली अटेंड कर दी। हाँ मैम, हाँ याद आ गया, डिस्प्रपोर्शन करा था, राइट। हाँ, same element is oxidized as well as reduced.
Okay. So now I am coming to the next topic, that is balancing of redox reactions. Balancing again is a time consuming process and it needs regular practice. देखो 11th में तो एक्चुअली में बैलेंसिंग अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन देती, एमसीक्यू नहीं देती, तो मैं 2 नंबर की इक्वेशन देती बैलेंस करने के लिए. लेकिन 12th में वो दे एज्यूम कि आपको बैलेंस्ड इक्वेशन आती है तो आधा नंबर ही हो जाती है वो कन्वर्ट. तो बैलेंसिंग में ना आपको फटाफट बैलेंसिंग की हैबिट होनी चाहिए फॉर योर क्लास 12 पर्टिकुलरली. और ये आपकी नॉर्मल बैलेंसिंग नहीं है, दीज आर नॉट द नॉर्मल बैलेंसिंग. आपकी देखो 2 तरह की बैलेंसिंग होती है. अभी कुछ लिखना मत, हेडिंग डालना बस, और उसके बाद पहले मैं जो समझा रही हूँ उस पॉइंट को ध्यान देना. तो आपने 10th और 9th तक बैलेंसिंग की थी. यू हैव डन ऑफ द सिंपल रिएक्शंस, लाइक यू हैव डन दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग. Yes or no? By hit and trial method. See, आपको if you know the product, what do you use to do? आपके 2 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बनेंगे, ऑक्सीजन हो गए 4 तो 2. You used to do hit and trial method. Yes or no? Yes, ma'am. But if I am giving you this equation, या मैं आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन बता रही हूँ. If I am taking an equation of this type, थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के हिसाब से कोई इक्वेशन दे. अगर मैंने आपको ये इक्वेशन दे दी, Cr2O72 minus plus 3SO2 plus 2H plus, ठीक है, इस तरह की बैलेंस. ये जो हमारी आयनिक इक्वेशन है, कैन यू सी दिस इज आयनिक इक्वेशन? यस और नो? दिस इज आयनिक इक्वेशन. और अगर मेरे कहीं पर भी आयनिक इक्वेशंस होती हैं, आई कैन नॉट यूज अ नॉर्मल मेथड फॉर द आयनिक इक्वेशंस और फॉर द रिडॉक्स रिएक्शंस. आई कैन नॉट यूज द नॉर्मल मेथड. या जैसे आपकी एक बैलेंसिंग ये आती है कई बार KMnO4 प्लस FeSO4 प्लस दिस, यहाँ पर कई बार आते हैं 5, यहाँ पर आते हैं 2. तो अगर आपको इस तरह की बैलेंसिंग करनी हो प्लस 16 HCl, तो 16 तो आप हिट और ट्रायल से ला सकते हो कि इतने दूर आप जाओगे कि आपको पता होना चाहिए कि एक को 2 से करना है, एक को 5 से, एक को 16 से. You cannot go for hit and trial method in these cases. जहां पर आपकी सिंपल होते हैं ना 2 एलिमेंट्स you could do. लेकिन जहां पर आपकी इक्वेशंस कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कुछ इक्वेशंस में होता है S8 plus 48 H2SO4, आप कहीं से भी 48 तो बैलेंसिंग में ला ही नहीं पाओगे. ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड हम सिंपल इक्वेशंस में करते हैं जहां पर एक तो कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और जहां पे बैलेंसिंग 1, 2 या 3 से मल्टीप्लाई करके हो जाते हैं, देयर वी कैन डू द सिंपल बैलेंसिंग. But if I am giving you a redox reaction, redox means it can be a combination, it can be a decomposition, it can be a disproportionation. We cannot use this simple hit and trial method. अच्छा, अगर मैंने आपको एक इक्वेशन और दे दी, ये बताना कि आप कर सकते हो क्या अपने आप? Just try it. If I am giving you this equation P4 plus OH minus plus water gives pH3 plus H2PO2 minus, आप इसको हिट एंड ट्रायल से ट्राई करके दिखा दो मुझे. Ma'am, your board is blurred. Is it blurred for everyone? No, ma'am. No, ma'am. आप ज्वाइन करो दोबारा से. No, ma'am. तो कुछ रिएक्शंस के लिए इनफैक्ट रिडॉक्स तो आपके हर जगह वैलिड है ये बैलेंसिंग, बट दिस टाइप ऑफ बैलेंसिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो भी आपके 11 से बैलेंसिंग आती है,
या तो आपकी सिंपल इक्वेशंस होती हैं जो आपने 9-10 तक पढ़ी थी, अदरवाइज व्हाट वी नीड इज द स्पेशल टाइप ऑफ मेथड्स. देयर आर टू मेथड जहां पर भी आपके चार्जेस आ गए, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहीं पर भी आयन आ गया, इफ देयर आर आयनिक इक्वेशन वी कैन नॉट डू बाय द नॉर्मल मेथड. ठीक है, तो इनके लिए देयर आर टू टाइप ऑफ मेथड्स. वन ऑफ देम इज अ हाफ रिएक्शन मेथड and second method is the oxidation number method. There are two type of methods. One of them is the oxidation number method. Second is the half reaction method. Now the advantage of both of them, they have their own advantage. क्वेश्चन में आप कोई भी एक मेथड से अच्छे से कर लेना. ठीक है, एनसीईआरटी में दोनों मेथड गिवन है. We also teach you two methods, both the methods, but most of the students वो confuse हो जाते हैं कि हमें कौन सा मेथड करना है. एग्जाम में आपको बाय एनी ऑफ द मेथड आएगा, आपको ऐसा आएगा ही नहीं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करो या हाफ रिएक्शन मेथड से करो. सो व्हाटएवर मेथड यू आर फाइंडिंग कन्वीनियंट, इजियर, you can do by that method. It's your choice. Is it okay? But what I always prefer, दोनों methods सही हैं. What I always prefer is the oxidation number method. This method is short. This method is little bit lengthy, but easy. ठीक है? Half reaction method is lengthy but easier. Oxidation number method is a short method. और अगर आपकी मैं 12th क्लास को माइंड में रखूंगी, क्योंकि 11th में तो आपको पूरे स्टेप्स के साथ करनी होती है, 12th में अगर आप बैलेंस, आपको कोई एक मैंने रिएक्शन लिखने को दे दिया, तो प्रोडक्ट्स का होता है आधा नंबर और आधा नंबर होता है बैलेंसिंग का. तो इट मीन्स इन क्लास 12 दे वांट यू टू गिव ओनली हाफ मार्क फॉर बैलेंसिंग. मीन्स आपको फटाफट शॉर्ट मेथड से बैलेंसिंग करनी है. अगर आप एक पेज लगा दोगे आधे नंबर के लिए तो इट्स वेस्टेज. यस और नो? अगर आप आधे नंबर के लिए पूरा एक पेज लगा के करोगे तो बहुत टाइम जाएगा आपका 12th के हिसाब से. 11th में यू कैन यूज एनी मेथड. बहुत सारे जो ट्यूशन टीचर्स होते हैं, ट्यूशन टीचर्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ट्यूशन टीचर्स एंड द कोचिंग सेंटर. ट्यूशन टीचर्स दे प्रेफर द हाफ रिएक्शन मेथड क्योंकि वो इजियर मेथड है. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्योंकि उनको शॉर्टकट मेथड चाहिए, दे प्रेफर द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. दोनों मेथड्स काफी हद तक सिमिलर हैं. ठीक है, और एक्चुअली में क्या होता है, क्लास में मैं आपको जो मेथड फर्स्ट कराऊंगी ना, आपको वो इजी लगेगा. दिस हैपेंस क्योंकि मैंने पहले वो कराया आपको, तो वो आपको इजी लगेगा, आपको उससे प्रैक्टिस हो जाती है. तो आई एम टेकिंग द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फर्स्ट, कीपिंग योर क्लास 12th इन माइंड. बाद में हाफ रिएक्शन भी कराऊंगी, कुछ स्टेप दोनों में एग्जैक्टली सेम है. इजियर क्वेश्चन से स्टार्ट करा रही हूँ. ओके, नाउ क्वेश्चन इज, क्वेश्चन कराओ या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. फर्स्ट आई एम टेकिंग इज द ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ एग्जाम. अच्छा, आपका टर्म फर्स्ट किसके ऊपर बेस्ड है? एमसीक्यू है, कैसे बेस्ड है? टर्म 1 मैम एमसीक्यू बेस्ड. ठीक है, तो स्टेप्स मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी, अदरवाइज भी शॉर्ट में करते हो. मैक्सिमम जो बैलेंसिंग होती है ना, वो 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं आ सकती. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. So I am taking a simple example of your NCERT only. Okay, I am taking this equation.
ठीक है, अब आप ये देख सकते हो कि दिस इक्वेशन यू कैन नॉट बैलेंस बाय द नॉर्मल मेथड। क्यों? यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन लिखा है कहीं प्रोडक्ट्स में, ऐसा नो? नो मैम। जब मैं आपको बैलेंस करने को दूंगी, आप क्या बैलेंस करोगे इसमें? आपको पता ही नहीं ऑक्सीजन कहाँ गई, कहाँ गई होगी ऑक्सीजन, गायब तो नहीं हो जाती ना वाटर में? कोई भी चीज हमें मालूम है कि जो नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स में होते हैं, सेम एटम शुड बी प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स। तो ऑक्सीजन मेरे को अपने आप यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसमें मैंने हिंट दिया इन एसिडिक मीडियम। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1। कुछ स्टेप्स बाद में कंबाइन भी करने लग जाएंगे। स्टेप 1, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर of all atoms. Find oxidation number of all atoms. So in step 1, I have to write down the oxidation number of all the atoms. So this is my equation. अभी मैं बिल्कुल step wise करा रही हूँ, बाद में थोड़ा थोड़ा step shortcut करा दूंगी। और step short में ही लिखना, ये नहीं कि पूरी कहानी लिखो बैठ के, ठीक है। Now what is the oxidation number of oxygen in MnO4 minus? ऑक्सीजन का -2, मैंगनीज +7। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता तो आप इक्वेशन तो कर ही नहीं पाओगे बैलेंसिंग, फिर तो भूल ही जाओ। आयरन का चार्ज क्या है? +2, मैंगनीज का है +2। आयंस के ऊपर जो चार्ज होता है वही होता है +3। यस और नो? ठीक है। सेकंड स्टेप, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, यही कर दो। फाइंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ आयरन का ऑक्सीडेशन। I am combining the steps, species undergoing oxidation or reduction. Here only I am identifying the species undergoing oxidation and reduction. So what we can see that in the case of Mn, there is decrease means reduction. Iron की हुई है आपकी oxidation. Yes or no? अच्छा, reduction में for 1 manganese, it is from 7 to 2. So how many electron change? Decrease by how many electrons? 5. Yes, ma'am. For 1 manganese, there is a decrease by 5 electrons. और इसका कितना हुआ? -2, आयरन का +2 to +3. तो कितना हुआ? इंक्रीज बाय 1. Yes or no? Yes, ma'am. ठीक है। तो what I have done, I have find out the oxidation number and I am identifying the species undergoing oxidation and reduction. मैंगनीज का हमने देखा कि +7 से +2 होके तो डिक्रीज बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर वह इंक्रीज बाय 1, ठीक है, +2 to +3. स्टेप 2, स्टेप नोट करो, ठीक है। बैलेंस all atoms except hydrogen and oxygen. Balance all atoms except hydrogen and oxygen. In this, are they balanced? Yes or no? We have to balance all the atoms except hydrogen and oxygen. Are they balanced in this case? Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay. So next step is balance all the atoms except hydrogen and oxygen. Also balance electron change. Electron change means loss or gain of electrons. Okay. Now I am moving to the second step, MnO4 minus. वैसे मैं इसी में फर्स्ट में यहाँ कर सकती थी, बट आई एम शोइंग द स्टेप्स इंडिविजुअली। ओके, यहाँ पर +7 से हुआ था +2,
यानी what was it? Decrease by 5. ठीक है, यहाँ पर था increase by 1. How can we balance the increase by and decrease? हम किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का था. तो हाउ शुड आई बैलेंस इट? into 5? Yes, ma'am. यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, तो यहाँ पर इंक्रीज भी कितने का होना चाहिए? 5 का होना चाहिए. तो आई एम मल्टीप्लाइंग दिस बाय 5. जब एक के बाद सेकंड एग्जांपल कराओगे ना, देन यू विल फाइंड इट इजियर. अच्छा, क्या होगा अगर मैंने इसको बैलेंस कर दिया? देन व्हाट वी आर गेटिंग? लिखो इक्वेशन, दोबारा लिखो. इसको मैंने इसको 5 से किया, इसको तो मैंने किसी से भी नहीं किया ना, तो ये तो मेरा सेम रहेगा. MnO4 माइनस विल रिमेन सेम. इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 5 से. तो रिएक्टेंट साइड में भी मुझे 5 लिखना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर तो कोई भी मैंगनीज में तो कोई भी चेंज नहीं था. Mn2 प्लस, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 Fe3 प्लस. यस और नो? Ma'am, हाँ जी. ma'am, can I leave? I need to revise for physics class. टाइम हो गया बेटा, 1 मिनट. कितना हो गया टाइम? ओके, so what should I do? Should I continue with the example या क्या करूँ बताओ? ओके, कल करा देती हूँ, कल करा देती हूँ. फिजिक्स क्लास में आई फॉरगॉट अबाउट द टाइम, तो जितना कराया उसको अच्छे से पढ़ लेना. ठीक. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. Thank you. Ma'am, have you taken attendance? अटेंडेंस मैंने ले लिया था बेटा, बीच में स्क्रीनशॉट्स. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम.